Our grateful thanks to revered Maharaj Ji. My dear boys and students, you have marked it. He has just told one particular thing and he reiterated it, that it was Swami Vivekananda, none more than Swami Vivekananda, who availed the glory of the youth, but not the youth of the body, but the eternal youth of the Atman, capable of doing anything and everything. Pranam Maharaj for brilliantly pointing it out. While listening to you, I remember one particular incident I feel like sharing with the boys and girls. Swami Medhashanandaji Maharaj, he is the head of Ramakrishna Mission Center in Japan. From Tokyo to Delhi he came, and then he was supposed to take a flight to Kolkata. In the domestic terminal, he approached one young official. He was very vivacious, very cheerful. He asked, the moment that official saw the Swami, he said, "Namaste Swamiji, what can I do for you?" Swamiji was greatly impressed by his demeanor, by his behavior, and then the job was done. And Swami Medhasanandaji Maharaj, the head of our center in Japan, just asked him, "आप स्वामी जी को जानते हो? स्वामी विवेकानंद को जानते हो?" "कौन नहीं जानता स्वामी जी? केवल 16 रुपए मेरा एक जीवन बदल दिया." He happened to buy a book by Swamiji costing only 16 rupees, and that changed the course of life of that young person. कौन नहीं जानता स्वामी जी, केवल 16 रुपए मेरा जीवन बदल दिया. So this is Swamiji. Now may I request Srimad Swami Shantatmanandaji Maharaj kindly to tell us. Students might say, मेरा तो काम है पढ़ाई लिखाई करना, छात्राणाम अध्ययनं तप. So what else should I do? Why should I serve the country? And if at all, how can I serve the country? You cannot find a better person than Swami Shantatmanandaji Maharaj, the head of Ramakrishna Mission Delhi, who is a great motivator and inspired thousands of students all over the country. Srimad Swami Shantatmanandaji Maharaj, he will just talk on how can the students serve the country. Revered Maharaj. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. The revered monks in the dais, the revered monks in the audience, assembled devotees, parents, guardians, and last but not least, the students, who are really the center of focus of today's this seminar or deliberations. I wish they had been given a little more seat in the front. Anyway, see, the whole conversation, the whole seminar, the whole discussion is again it is centered around Swamiji. स्वामी विवेकानंद की केंद्रित है हम सब जो चर्चा कर रहे हैं. I would like to tell you a brief description of Swamiji. उनके बारे में उनके अनन्य एक अनुयायी सिस्टर क्रिस्टीन ने जो कहा. What did Sister Christine? This is how she begins her reminiscences of Swami Vivekananda. At long intervals of time, a being finds its way to this planet
is undoubtedly from a different sphere. He brings along with him to this sorrowful world some of the glory, power, and the grandeur of the far distant region from which he came. He walks among men, but he does not belong here. He is a wanderer. He tarries but at night. This is how she begins. And she goes on to say, blessed is the country in which he was born. Blessed are those who lived on this earth at the same time. And blessed, thrice blessed, are the few who sat at his feet. So imagine, this is how a Western disciple talks about Swami Vivekananda. साधारण ये भारतीय परंपरा में विशेष रूप से शास्त्र की चर्चा करते हैं. हम उसकी बाकी स्तर पर भी ले सकते हैं. अनुबंध चतुष्टय करके एक चीज हम लोग वही उसके आधार पर चर्चा करते. पहला चीज तो विषय है, सब्जेक्ट. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ this deliberation, particularly the topic that was given to me? How the students can serve the nation. The explanation or understanding this topic is विषय के अर्थ है, that we will unravel or understand as we go forward. दूसरा है प्रयोजन. व्हाट इज द नीड? मैं क्यों करूं? देश के लिए तो मैं बाद में सोचूंगा. मैं तो अभी छात्र हूं, छात्री हूं. मेरा क्या है? यस, दैट ऑल्सो वी शुड फाइंड आउट. व्हाट इज द कनेक्शन? संबंध क्या है? संबंध दो चीज लेके, पहले हम सबको क्या परस्पर किस स्तर पर, किस जगह पर, किस चीज लेके हम लोग संबंधित. व्हाट इज द कनेक्शन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस? आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड फाइंड आउट. बिकॉज यू नो, एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, भारत की नागरिक होने के नाते, ना तो भविष्य के नागरिक हो जाएंगे, ऐसा होने के नाते द ओनली कनेक्शन हम सबको बीच में क्या है? मैं कहां से आया हूं, इन लोग कहां से आए हैं, सारा भारत से विभिन्न प्रांत के आए हुए लोग सब बैठे हैं यहाँ. देयर आर पीपल फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया सिटिंग हियर, मे बी इन डिफरेंट नंबर्स, बट देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. इतना तक नहीं है, 140 करोड़ भारतवासी, हम सबको लेके क्या चीज है विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस? दैट इज all of us belong to this country. भारत मेरा देश है. भारत के नागरिक होने के नाते हम सब परस्पर संबंधित हैं. We are connected to each other as citizens of this country. इसीलिए कहां बहुत बाढ़ है, वहां गरीबी है, करोड़ों करोड़ों भारतवासी वो गरीबी का सीमा रेखे के नीचे जी रहे हैं. मैं 10 तोला, 20 तोला, 25 तोला मंजिल में मैं मौज कर रहा हूं. दैट सिचुएशन इज नाइदर डिजायरेबल नॉर मेंटेनेबल. ये देश इतनी सहनशील है. द कंट्री इज सो टॉलरेंट. दैट इज व्हाई वी आर टॉलरेटिंग द ह्यूज इम्बैलेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. मैं साधारण तो ऐसे भाषण नहीं देता हूं. छात्रा छात्रियों के बीच में घूमते उनके साथ बातचीत करके मैं ऐसे कुछ चर्चा करता हूं. लेकिन आज वो अवसर नहीं है, इसलिए मैं एक तरफा बोल रहा हूं. बाद में किसी अवसर हो तो हम लोग चर्चा करेंगे परस्पर. सो यू नो, टुडे 95% of India's wealth is in the hands of 5% or less than 5%, much even less than that. 95% धन दौलत संपत्ति, 5% भी नीचे संख्या लोग भोग कर रहे हैं. Because we are tolerant, we are not breaking into homes
Today in South Africa, it has already happened. कितना बहुत बाद में आजादी मिली साउथ अफ्रीका का, लेकिन ऑलरेडी the less privileged people, the poor, are barging into the houses of the rich and taking away possessions. मैं कितना दिन देखते रहूंगा, मेरा सामने एक आदमी तो इतना भोग है, उसका कितना सुविधाएं हैं. Right in front of me I find someone becoming millionaire, billionaire and so on and so forth. Whereas even for a morsel of food or the minimum necessities of life, रोटी कपड़ा मकान भी मेरा कोई व्यवस्था नहीं है, सहन नहीं होगा. It can lead to a very disastrous situation. There will be more and more violence. Today why there is so much of violence in the country? जब भी आप कोई आंदोलन के नाम पे कुछ घोषणा करें, हजार हजार युवक वहां जाके खड़ा हो जाता है. क्यों? विषय पर उनका कोई संबंध नहीं है. They are not connected with the topic of the आंदोलन, or why an आंदोलन or a strike or a हड़ताल is being organized, protest. They know that आप हर साल मान लीजिए विद्यालय कॉलेजेस से 1.5 करोड़ के अधिक बच्चे लोग निकलते हैं, उसके अंदर 10% के भी अगले पढ़ाई की कोई ही व्यवस्था नहीं है. Not even 10% can pursue their education beyond the college level. आप इंजीनियरिंग मेडिकल की बात छोड़ ही दीजिए, साधारण एक स्नातक होना, even to become a graduate, it is beyond the scope of more than 10%. तो हर साल आप करीब 1.5 करोड़ युवकों को आप समाज में छोड़ते हैं, जिनका कोई अगले पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, नौकरी की व्यवस्था नहीं है. वो एक वायलेंस छोड़ के क्या करेंगे बताइए? No, they know if they go to any आंदोलन, they will get 1,000 rupees per day. अच्छा खाना पीना शराब भी मिलता है. So that is why there is so much of violence. We need to understand, and that as young students you must understand even now. यहाँ आपका संबंध है, यहाँ एक विषय आपकी जरूरत है. That's how you are. This topic is of interest to you, and this connection is very much there, because the things are only going from bad to worse. Unless in some way we try to understand and bridge the gap between the rich and the poor. अमीर गरीब की जो फर्क है किसी तरह थोड़ा भी कम हो जाए, तब तक कोई शांति में नहीं रह सकते हैं. No one can live in peace. We are constantly under threat. Any time people can barge in. The number of, slaves being snatched, मोबाइल फोन being snatched, रास्ता पे हर रोज जो हो रहा है 20-25 साल की पहले नहीं होता था, और दिन के दिन वो करा भी होगा जब तक आप सब विशेष रूप में the students and the youth of today, unless they take it upon their shoulders the responsibility to do something to regenerate our nation, they will not be spared. इसलिए आपकी स्वार्थ से, for your own dire necessity, you must look at the country, try to understand where it is and what can you do in your own way. फिर भी विवेकानंद क्यों है? Why विवेकानंद? विवेकानंद की अधिक देश प्रेमी कभी भी भारत में जन्म नहीं लिया. I think, महात्मा गांधी जी 1921 में बेलूर मठ भ्रमण करने के लिए आए थे. जाते से ही उन्होंने विजिटर्स बुक में लिख के गया, I have gone through his works thoroughly, and after reading them, my love for my country has become 1,000-fold. उनकी किताब पढ़ने के बाद ये देश के प्रति मेरा प्यार 1000 गुण वृद्धि पाया. समझ लीजिए कितनी बड़े महात्मा गांधी, जिनके हम लोग देश पिता कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन. In his own handwriting he writes, my love for my country became 1,000-fold. रविन्द्रनाथ क्या लिखा उनके बारे में, क्या कहा? If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative. वही सिस्टर क्रिस्टीन लिख रही है अपना स्मृति चारण में, in her reminiscences, our love for India gave birth in our hearts the first time we heard him pronounce the 5-letter word India. हम सबको हृदय में भारत की प्रति जन्म लिया पहले बार उनकी मुंह से
इंडिया शब्द हम लोग सुन पाए। लिख रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन what all he could convey in that single 5-letter word, the way he would pronounce it. He could convey by the way he would speak India's glorious past, its present degradation, its future glory, its culture, its history, its tradition, what not. That was his love for India. क्योंकि स्वामी जी हम सब की तरह साधारण स्तर की मनुष्य नहीं थे। He was not interested, ए देश सेवा वगैरह उनका मूल तो ऐसा सोच ही नहीं था। वो जन्म ही लिए थे दूसरी कारण से। श्री रामकृष्ण देव उनके बारे में कहा, इस ध्यान सिद्ध है। कल हम लोग सुने, जन्म से ध्यान उनका प्रिय था। इसलिए जब भी श्री रामकृष्ण देव उनको पूछा तुम क्या करना चाहते हो, मैं हमेशा समाधि में डूब रहना चाहता हूं, कभी कभी वो अवस्था से उतर के थोड़ा कुछ लेके फिर समाधि में डूब जाओगा। बट श्री रामकृष्ण कुछ नहीं हुए, बहुत उनका डांटा, बोला क्या तुम्हारा इतना एक नीच बुद्धि है। मैं सोचा तुम यहाँ कहा बड़ा वटवृक्ष बनोगे, उसकी छाया की छत्र में हजार हजार जो संसार में जले हुए मनुष्य आके आश्रय लेंगे, तुम क्या अपना के मुक्ति के बारे में सोच रहे हो? तुम ये गाना नहीं गाते हो ना, जो कुछ है सो तू ही है। तुम क्या आंख बंद करके भगवान के देखना चाहते हो? आप खोल के नहीं देखोगे। That day something else happened in his heart, and we all know the history of his Bharat Brahman, when he toured India and finally when he sat on this rock in Kanyakumari for 3 days and 3 nights, उस समय संपूर्ण रूप से भारत की तस्वीर, भारत की उस समय का स्थिति, भविष्य की उज्जवलता, सब कुछ उनके सामने आ गया था। In that extraordinary vision, which he has not shared in great detail with anybody, he could clearly understand the present, the future glory of India, the present degradation, his own role, what he was to do. So obviously, विवेकानंद is the obvious choice. क्यों? हम सब एक नागरिक होने के नाते ना भविष्य में नागरिक हो जाएंगे आप लोग। In that connection, we are all connected with each other, and we are all in turn connected to Vivekananda because he was the greatest of patriots who have ever been born in this country. So हम लोग विषय भी चुन लिया, संबंध भी बना लिए. So that is why Vivekananda is so relevant. That's why he said, अगले 50 साल सब देव देवताओं के ताक में उठा के रख दो, भारत माता तुम्हारी एकमात्र आराध्य देवता. So you know, obviously, what else can be our choice other than Vivekananda, who lived? You see, if you really understand Swamiji's life, the first part of his life, till he went to, till the Mahasamadhi of Gurudev, मान लीजिए 1886 तक, जन्म से 23 साल अपना खोज में, ढूंढ में, क्या वो प्राप्त करेंगे? वो कौन थे? Who was he? To realize, understand his own nature, his extraordinary divinity. That was the first 23 years. But having done that, there is 16 years, starting from 1886, till he entered into Mahasamadhi voluntarily. खुद ही वो महासमाधि में लीन हो गए थे. तब तक 16 साल दिन रात सिर्फ भारत 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 छोड़ के दूसरा शब्द नहीं था. दिन में, रात में, स्वप्न में, निद्रा में, जागृत अवस्था में, हर समय it was the only word that resonated in his heart. लेकिन वो जानते थे मेरा समय बहुत कम है, इसीलिए when he came back from the west, he immediately set to task himself what he has to do in this regard. इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापना किया और जितना संभव युवकों को उद्बुद्ध किया. His idea was to inspire the youth. That was what he was doing largely. And you know, he had tremendous faith in the youth of India. As someone carrying forward his legacy, as someone who has listened to him through others, all of you also have quite a lot to do, although you are quite young. You don't have too much of time, but let me, in a little bit of time that is left, let me try to give you a few limited ideas.
पहले चीज आपका, क्योंकि हम सबको एक हमेशा जीवन का एक आदर्श ढूंढते हैं. ऑल ऑफ अस वांट अ रोल मॉडल, एन आइडियल फॉर आवर लाइफ. सारा भारत का, सारा दुनिया का आप कोई एक ऐसा कोई आदर्श व्यक्ति आप चुनना चाहते हैं. द ग्रेटेस्ट, द फर्स्ट चॉइस ऑफ द होल वर्ल्ड वुड बी प्रोबेबली स्वामी विवेकानंद. पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री, a person who shed every drop of his blood thinking about the welfare, how to restore its glory. I don't think we can go beyond Vivekananda. That's why in 1885, when the late Prime Minister Indira Gandhi wanted to select a youth icon for our nation, उस समय भी उनका अनुभव हुआ, भारत का युवकों बहुत भटक रहे हैं. They are going directionless. उनके सामने ऐसे कोई व्यक्तित्व, ऐसे कोई व्यक्ति का जीवन आदर्श रूप में रखना चाहता है ताकि सब उनका ऐसे कोई उद्बुद्ध होके अपना जीवन में देश के लिए भी बहुत कुछ करेंगे. सो शी डिक्लेयर्ड, उस समय तो भारत सेकुलर उस समय से बहुत नारा चल रहा था, फिर भी एक सन्यासी को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान उन्होंने दिया. कहा हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे. सो आप लोग भी अभी इस अवस्था से पहला चीज स्वामी विवेकानंद का कुछ पढ़ो. टेक सम ऑफ हिज लिटरेचर, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सी ऑल दीज आर ऑल आई एम सेइंग एज अ पार्ट ऑफ योर सर्विस टू द नेशन. क्यों? ये देश के आप क्या कर सकते हैं उसके पहले थोड़ा आपका समझना चाहिए. वेयर आर यू, हु इज योर आइडियल, हु इज योर रोल मॉडल. क्योंकि हम सब चुनते हैं. सपोजिंग यू मेक अ फिल्म स्टार एज योर रोल मॉडल और अ स्पोर्ट्समैन एज योर रोल मॉडल, आपका क्या है, उस दिशा में आप बढ़ सकते हैं. इफ यू वांट टू बिकम a sports person, you can go. Supposing you are not as good, लाखों लोग बच्चे लोग बैट लेके निकलते हैं घर से. Does everyone become a Tendulkar or a Virat Kohli? No. So आपको निराश ही मिलेगा. But on the other hand, if you have a person, if you have Swami Vivekananda as your role model, आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में वो आपका मदद करेंगे. क्योंकि उन्होंने कहा, you are the maker of your own destiny. A first individual in the world who had immense faith in every individual. हर व्यक्ति के ऊपर उनके इतना विश्वास था, सबको विश्वास करते थे. So obviously, you know, if you go to Vivekananda, you will never be turned back. कभी भी वो आपके प्रति नाराज होंगे, कभी भी आपका वो बाकी ऐसे ही वापस भेजेंगे. He will always guide you, always inspire you, whatever be your background. आप पढ़े भी अच्छा भी हो, नहीं भी हो. You may be good in studies, not good in studies, अमीर गरीब, जिस जाति से जहां से भी, wherever you are, he will inspire each and every one of you because he believed sincerely and it was an experience that in you there is extraordinary power and potential. मान लीजिए जीवन में तो आध्यात्मिकता तो जरूर है, लेकिन आप जिस स्तर पे अभी है, obviously you are worried about your career, about your future, मैं क्या करूं, कहां नौकरी करूं, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा. So although all of us are divine potentially, अभी आपका क्या है, जब आप आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जरूर सोचो. Think of becoming great, think of achieving extraordinary success in your life. उसके साथ इतना ही चाहिए, थोड़ा दूसरों के प्रति भी थोड़ा जोड़ दो उसके साथ, आपके जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा. See, you can, because see, unless supposing you give my wonderful industrialist, आप बड़ा एक शिल्पपति बन जाए, yes, you may have personal wealth, but आपके हजार लोग का आप कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, जिसकी वजह से लाखों मनुष्य का उपकार होगा. So don't think that all of you have to become paupers, nothing. Achieve greatness, achieve success, become great doctors, engineers, industrialists, जो भी बनना चाहते हैं बनो. लेकिन इसके साथ थोड़ा उन्हें जो महामंत्र दिया, दूसरे के बारे में भी थोड़ा सोचना, अपना जीवन में ले आओ, आपका कुछ भी कम नहीं होगा जीवन में. So you will do well for yourself
at the same time you can also have some thought about someone else. मैं एक आपकी सच घटना एक शेयर करना चाहता हूं. कुछ साल की पहले आप सब सुने होंगे जरूर, IIM अहमदाबाद, द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री. वहां से निकलती है आपकी 1 करोड़ अधिक सैलरी मिल सकता है. दैट इज द रेटिंग. सो कई साल पहले वहां से एक दक्षिण भारत के लड़का पहला स्थान प्राप्त किया था. He was offered by many multinationals, करोड़ रुपये की सैलरी की उनकी सब ऑफर आया था, लेकिन he refused everything and he said, I am going to set up a snacks chain. थोड़ा नाश्ता जो जहां से बिकेगा ऐसा कुछ कहीं मैं सेटअप करना चाहता हूं. सब बोला, अरे क्या बुद्धि है, तुम इतना बड़ा बड़ा ऑफर तुम रिजेक्ट कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे. लेकिन उनका कुछ था. क्यों? उनकी माँ वो बचपन से अपना पिता की खोया था. माँ घर घर पे इडली बेच के उनके पढ़ाया था. वो इसी पढ़ाए थे, इसी व्यवस्था की, क्योंकि और कुछ उपाय नहीं था. इसी तरह धीरे धीरे वो इंजीनियर भी बन गया. 1-2 साल नौकरी करके फिर IIM अहमदाबाद में ज्वाइन किया. वहां से वो निकले. उस समय उन्होंने सिद्धांत लिया, मैं ऐसा सिर्फ मेरे के लिए नहीं सोचूंगा और दूसरों के लिए सोचूं. इसकी क्या परिणाम, जो मल्टीनेशनल्स में जो उनका पैसा मिलता था उसके भी अधिक उनको कमाई हो रहा है. लेकिन साथ के साथ 10,000 15,000 लोग को उन्होंने नौकरी भी दे पाया. इसीलिए स्वामी जी ऑलवेज से ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, जीवन में बड़ा कुछ जरूर करूंगा. शिक्षा के बारे में भी वही स्वामी जी कह रहे हैं, द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन यू. परफेक्शन क्या है, डिविनिटी क्या है, आप कई तरह समझ सकते हैं. मैं मेरे छोटे से ही बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत संभावनाएं, इस सबको निकालना वही मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी और दैट परफेक्शन. इसीलिए आप सबको ये सब जरूर ध्यान रखना चाहिए. और इसमें मैं क्या बता रहा हूं, ये देश में बहुत सारी चीज की जरूरत है. आप तो खुद के लिए तो जरूर अच्छा करेंगे, लेकिन स्वामी जी ने जो कहा था, स्वामी जी का मूल मंत्र जो था, ये देश का 2 आदर्श के प्रति ये देश स्थापित है, त्याग और सेवा. सो मान लीजिए हम सबको जीवन में, दुनिया में जो भी देश, जो भी समाज, जो भी परिवार, मान लीजिए आपके घर पे क्या हो रहा है, आपकी माँ बनाती हैं कुछ, सबको बांटती हैं, कुछ नहीं बचता तो बहुत खुश हो जाती है. कभी की क्या करती है, मेरा पहले उठा के मेरा भाग रख दूंगा, बाकी सबको दूं, ऐसा सोच रही है कभी. सी शी डज सेवा, शी डज सैक्रिफाइस, सारे संसार खुश है. एवरीवेयर. यहां में बहुत सारी टीचर्स है, वो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाएं, थोड़ा समय लेके क्लास की बाहर भी कुछ पढ़ाएं. then they'll be sacrificing a little of their time, little of their scope for extra income, doing the service, and they'll be serving the students. उनका ये भी ऑप्शन था, यहाँ किसी तरह पढ़ाऊं, बोलूंगा तो मेरा घर आ जाओ, अलग पढ़ाऊंगा. That's also possible, which is better. So you know, each one of you at your age, maybe there are servants in your house. उसके बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, स्कूल जा रहे तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है. Definitely you can share your books, can share your knowledge, teach for some time. आपका बहुत आनंद होगा इसे भी. In so many ways. मान लीजिए आप बड़े धूमधाम दिवाली मना रहे हैं, आपकी सर्वेंट्स बच्चे देखते रहे, नहीं मैं उसके लिए करूंगा, मैं जो हुआ उसकी भी मैं व्यवस्था करूं. See, in a small way you can begin even now at this age, because you know the field of tyaga and seva is infinite. उसके कोई सीमा नहीं है. जो भी जितना छोटा बच्चा भी हो, every can take part. मान लीजिए रास्ता भी जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं, हाथ पकड़ियो के दूसरी तरफ पार कर दो रास्ता. दैट्स ऑल्सो इज सेवा, दैट्स ऑल्सो इज सर्विस. लेकिन आप क्या है, अभी से मूलतः आपका मन में ये सब विचार, यही करना, मैं बड़े होके क्या करूंगा. सो सबसे पहला स्वामी जी का जीवन का आदर्श बनाना, साथ के साथ छोटी छोटी किताब से प्रारंभ करके
स्वामी जी की परी उनकी पढ़ना, ध्यान देना, सोचना, ताकि आपके जीवन के साथ हर रोज स्वामी जी जोड़ रहेंगे. That is the way to greatness. That is the way to success. If you do that, even now you will start serving your country, because the first step to serve India is to love Vivekanand. स्वामी जी के आप प्यार करें तब देश की सेवा कर पाएंगे. Then along with that, as I said, all these ideas, even in a school, जहां जहां संभव, सिर्फ मेरा जीवन सिर्फ मेरे के लिए नहीं है, खुद का तो अच्छा बनूंगा, साथ के साथ दूसरों के लिए कुछ करूंगा. If this becomes the mantra of your life, you have started serving your country right now. Imagine that. But you see, every day you will get opportunity. आप क्लासरूम में जा रहे हैं, देख रहे हैं गंदा है, अरे आज तो स्वीपर नहीं आया, सब चिल्ला रहे. नो, इमीडिएटली मैं कुछ ले लिया, ब्रूम साफ कर दिया. दैट इज योर सर्विस. इसी ऐसे नहीं है बड़े बड़े कुछ मंच बनाना, कोई प्रोग्राम लेना, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करना. नो, रामचंद्र जी आप जानते हैं, दैट स्क्विरल इट कैरीड जस्ट अ पार्टिकल ऑफ मड and it was blessed by Sri Ramchandra in building the bridge. So you know, अभी से सोचना. अंत में मैं एक आइडिया आपके शेयर करना चाहता हूं. देश में देखिए बहुत सारे प्रतिष्ठान अभी आगे हैं, भारत में भी, उन सब अपना अपना फेलोशिप प्रोग्राम उन्होंने चालू किया. There is a Teach India program, there is a Mahatma Gandhi fellowship, there are so many fellowships. आप सब बचपन होके, मेरे ख्याल से भारत सरकार भी ऐसा कोई नियम भी बनाए बहुत अच्छा होगा, नहीं भी बनाए, आप सब बड़े होके, मैं ग्रेजुएशन की बाद 2 साल देश के लिए दूंगा, ऐसा कोई प्रतिष्ठान के साथ जोड़ लूंगा. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम रामकृष्ण मिशन दिल्ली, महाराज ने बताया सारा भारत जुड़े हम लोग एक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक 6000 विद्यालय नामांकन कर लिया, 12 लाख का अधिक बच्चे लोग का प्रभावित हो गए. बहुत सारे 50,000 60,000 टीचर्स के हम लोग प्रशिक्षण दिया. लेकिन हम लोग ये सब करने के लिए 40 की अधिक निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स, डॉक्टर्स एंड अदर्स. लेकिन सारा भारत हम लोग रिसोर्स पर्सन नियोग किए, क्योंकि एक ऐसे कोई समाज सेवा प्रतिष्ठान तो एक मल्टीनेशनल की तरह महीने नहीं दे सकते हैं. So our salaries are moderate, but we have instituted a Vivekananda fellowship program. 2 साल ए अवेकन जागरूक नागरिक कार्यक्रम के साथ जोड़ के 2 साल सारा भारत जाने का आपका मौका मिलेगा, बच्चे के साथ, स्कूल्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्योंकि ये देश सेवा प्रारंभ होगा स्कूल प्रांगण से. बड़े होके तो सब स्वार्थी बन जाते हैं, उस समय दूसरे के बारे में सोचने का समय भी नहीं है. लेकिन when you are young, when your minds are fresh, जैसे महाराज ने बताया, आप पवित्र है, इस अवसर पर, इस जगह आपका स्टैंडिंग एट दिस जंक्शन ऑफ योर लाइफ, अभी से आप ये प्रोग्राम के बारे में बता किए और दूसरे ऐसे प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़े हुए. 2 years आई विल गिव इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ताकि आपका सीवे में भी अच्छी आएगा, उसके लेके यू कैन गो फॉर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, मेनी अदर प्लेसेस. फिर भी आपका इतना तक मन में एक रहेगा, ए देश के लिए मैं 2 साल दिया. बिकॉज एट दैट टाइम when you are not bothered with family and other responsibilities, probably that is the best time you can devote very fearlessly, freely, without any second thought for the welfare of the country. ऐसा कोई विशेष रूप से जागरूक नागरिक कार्यक्रम, वो संपूर्ण रूप से स्वामी जी की शिक्षा इन्होंने जो बताए थे, उनकी जो वाणी, इसके आधार पर बने हुए प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हुए हैं. इनफैक्ट वी टाइम टू टॉक मोर अबाउट दैट, बिकॉज़ दैट टॉक्स अबाउट Atma Shraddha. Instilling Atma Shraddha in every student is the central idea of this program. Probably our country needs this more than anything else. Our youth, there is enough opportunities, enough water, enough power, enough land, everything is enough. What we lack is Atma Shraddha or self-belief. एक प्रोग्राम के माध्यम में हम लोग एक आत्मश्रद्धा जगाने के लिए प्रयास करें. आप भी आपकी ग्रेजुएशन की बात 2 साल आप जुड़ जाएं, देश के लिए बहुत बड़ा सेवा होगा. लेकिन आपका जो खुद का मेंटेन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था जरूर करेंगे, लेकिन इट विल नॉट बी ए ह्यूज सैलरी, इट विल बी इनफ जस्ट टू मेंटेन यू. नाउ इटसेल्फ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट.
Now itself we take a resolution. When I come to that age, after I finish graduation, I will devote 2 years for the country. It's such a beautiful school, such a wonderful institution. 100 years is not a small time. You're all part of this, and all those who have come, go back fully enriched by Swamiji's ideas. Be inspired by Swamiji. Then you will grow. If you grow, Samaj will grow, and the country will grow. The world itself will progress. We will see a new world arising out of the young minds who are here. Thank you.